हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में भी हम इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पूछे गए एक क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का है। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं और उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करें, एक बार फिर से आप सभी के लिए रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। एक छोटी सी मेंबरशिप फी दे के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको और भी वीडियोस मिला करेंगे। आइए देखते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से लिया गया है। ये डायग्राम में एक्चुअली ये जो डॉट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. There is a horizontal uniform magnetic field coming towards you, horizontal magnetic field, uniform field coming towards you, right? And this diagram of the plane of the board is vertical as you are seeing it. So the question says a uniform magnetic field B is applied horizontally as shown. The field exists in the region x less than 0. Now this horizontal line marks, this is basically y axis, and here x is 0. The positive x axis is in downward direction. Okay. So the field exists only in the region x is less than 0, means field exists only above this horizontal line that I have drawn. These are the positive y and x directions. I hope you have understood this situation. Now this is a conducting rectangular loop in vertical plane, right? So a rectangular conducting loop of mass m, width w and length h and self inductance L is held in vertical xy plane with its bottom edge along the y axis. As I said, this is line, white line is y axis, and this is a rectangular conducting loop having width w, length h. It is held like this, as you can see, its bottom edge is touching the y axis. There is no magnetic field beneath this line. Okay. In this problem, take the resistance of the loop to be 0. There is no resistance. It has got inductance, but there is no resistance. That is what the question says. The loop is released from rest at time t is equal to 0 and descends under gravity. The gravity is vertically downward. So loop is released at time t is equal to 0 and it begins to fall. The acceleration due to gravity is g in positive x direction, right? So what are you supposed to find? Obtain position of the loop as a function of time. This is not x into t, this is x coordinate as a function of time t. Obtain x coordinate as a function of time t for the bottom edge of the loop. ये जो लूप का ये वाला एज है, ये किनारा है, इसका x कोऑर्डिनेट टाइम के फंक्शन में लिखिए in terms of given quantities, right? And there is one more question, what is the maximum mass of the loop for which its motion is periodic? I have changed this question a bit from what was originally asked in the exam. थोड़ा सा बदल दिया है और क्वेश्चन ऐसा है कि what is maximum mass of the loop for which its motion is periodic? ये एक तरह से आपको हिंट भी देने के लिए है कि आप समझ सकें कि मोशन किस तरह का होगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकें। अगर लूप बहुत भारी हुआ तो वो नीचे गिर जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन को पढ़ के एक हिंट मिल रहा है, और लूप अगर हल्का हुआ तो शायद वो किसी किस्म का पीरियोडिक मोशन करेगा, ऐसा क्वेश्चन को पढ़ के एक हिंट मिल रहा है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इससे पहले कि आप मेरे सोल्यूशन को देखिए। आइए हम करते हैं इसका सोल्यूशन। दिस इज द सिचुएशन शोन, राइट? ये लूप को हमने इस पोजीशन से छोड़ा और मान लेते हैं कि t सेकेंड के बाद, t टाइम के बाद ये इस पोजीशन में आ गया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से x नीचे आ गया। तो ये जो लोअर एज है उसका x कोऑर्डिनेट x हो गया, राइट? इस पोजीशन में ही हमें पता लगाना है, इस पोजीशन के लिए हमें पता लगाना है बेसिकली कि x, हाउ इज x चेंजिंग विथ टाइम t. दिस इज व्हाट वी आर supposed to calculate basically. So what can we do about it? जब ये x नीचे आया तो naturally this length which is still inside the magnetic field is h minus x, width is w. Okay,
Let us assume that at this instant the speed of the loop, polling loop is v. मान लेते हैं कि इस वक्त इसकी रफ्तार जो है वो v है, एंड लेट अस अज्यूम देयर इज सम करंट I इन द लूप. करंट क्यों है बेसिकली? तो ऑब्वियसली इसमें एक EMF इंड्यूस हो रहा है. अगर हम फैराडेज लॉ से सोचेंगे तो एज द लूप इज मूविंग द फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द लूप इज चेंजिंग. बट अक्सर आप देखोगे कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो मोशनल EMF का कॉन्सेप्ट सोचना थोड़ा आसान पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो व्हाई नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ मोशनल EMF ओनली. तो आप देख सकते हैं कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है ये वाला एज, तो इसमें कोई EMF तो डेवलप होगा नहीं. ये एज जो है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके लेंथ के पैरेलल है, इसमें भी कोई EMF इन दो पॉइंट्स के बीच में डेवलप नहीं होने वाला, यहाँ भी नहीं डेवलप होने वाला. ये एक किनारा है जिसमें एक EMF डेवलप होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता हुआ कंडक्टर है. वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही केस में EMF डेवलप होता है इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस. ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है ये डाउनवर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, इस एज की बात कर रहा हूँ. इसकी लेंथ ऐसी है, वेलोसिटी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है. इसमें एक EMF डेवलप होगा. EMF की पोलैरिटी जाननी है, अगर पॉजिटिव एंड कौन सा है, निगेटिव एंड कौन सा है, तो बहुत सिंपल तरीका है V क्रॉस B करने का. वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, V से B की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. अंगूठा पॉजिटिव एंड को बताता है. ये टर्मिनल, ये एंड जो है हायर पोटेंशियल पे होगा सो कॉल्ड, और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ऐसा बोल सकते हो. एक EMF डेवलप होगा इस रॉड में, और उसकी वैल्यू ऑब्वियसली BLV जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, B मैग्नेटिक फील्ड, V स्पीड, और यहाँ लेंथ जो है वो W है. तो BVW इतना EMF डेवलप होगा, और EMF ये पॉजिटिव एंड होगा, ये निगेटिव एंड होगा. लूप में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा कहा गया है, पर इंडक्टेंस है. तो सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोर और लेस ये एक इस तरह का सर्किट है. इसमें एक EMF डेवलप हो गया इतना. ठीक है, ये डंडा थोड़ा छोटा बड़ा गड़बड़ हो गया ना, इसको एक मिनट, जस्ट ए मिनट. हाँ, ये जस्ट सिंबॉलिक एक बैटरी बना दी है मैंने, है ना. एक सिंबॉलिक बैटरी बना दी है, वो फिक्स्ड EMF की बैटरी नहीं है, V बदल रहा है. ये दिस इज नॉट अ सेल ऑफ कांस्टेंट EMF. जस्ट किसी मोमेंट पे सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन कैसी उसको समझने के लिए मैंने एक EMF बना दिया है. EMF का रिप्रेजेंटेशन है ये. इस समय इंस्टेंटेनियस EMF इतनी है, और इस सर्किट में लूप का एक इंडक्टेंस है, तो एक इंडक्टर कॉइल लगा दिया है मैंने. ओवरऑल एक इंडक्टेंस है और एक मोशनल EMF की वजह से EMF का सोर्स है. मोटी बात यह है, समझने के लिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम मैंने बनाया है. ऑफ कोर्स सर्किट ऐसा तो नहीं है ना. बहुत सिंपल है समझना कि जो अगर हम किरचॉफ्स लॉ बोलें सो कॉल्ड, तो किरचॉफ्स लॉ से जो इक्वेशन हम लिख पाएंगे वो ये लिख पाएंगे. इसको अगर ऐसा ही सर्किट होता, एक मिनट जैसा मैंने दिखाया ऐसा ही सर्किट होता, अगर करंट I होता, ऐसे सोचिए आप, V बढ़ने से, वेलोसिटी बढ़ने से, मान लीजिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक मिनट, वेलोसिटी बढ़ने से EMF बढ़ रहा है, ऐसा मान लीजिए एक मिनट के लिए. ठीक है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है. तो इसमें जो इंडक्टर है, किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि यहाँ से यहाँ जाने पे अगर 10 वोल्ट का गेन हुआ तो यहाँ से, या उल्टा बोलूँ, यहाँ से यहाँ जाने पे भी 10 वोल्ट का गेन होगा. यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट का गेन हुआ तो यहाँ से यहाँ जाने पे 10 वोल्ट का लॉस होना चाहिए. दैट मीन्स इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ होगा उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी. और अगर एक मिनट के लिए हम माने कि V बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, तो di/dt पॉजिटिव है, लेट अस अज्यूम di/dt पॉजिटिव है, तो L di/dt इसमें इंड्यूस होने वाले EMF का मैग्नीट्यूड है. और जिस कंडीशन, जिस स्पेशल केस की बात मैं कर रहा हूँ कि मान लो V बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, इस स्पेशल केस में इसमें जो EMF पैदा होगा उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी ही होगी. तो अगर यहाँ 10 वोल्ट का EMF है तो यहाँ भी 10 वोल्ट का ही EMF होगा. पोलैरिटी दोनों की ऐसी है, सो वी कैन सिंपली राइट L di/dt इज इक्वल टू BWV. कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं ऑफ कोर्स कि लूप का जो टोटल EMF है दैट इज इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस नहीं है,
तो लूप के टोटल ईएमएफ को आप लिखते हो BWV माइनस LDI/dt दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो भी ठीक है। हमने यहाँ पे सोचने में कई बार आसानी होती है, हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं, ये I बढ़ रहा है ऐसा मान लो, तो इस केस में ये सर्किट ऐसा दिखेगा और आप ये जस्ट इंट्यूशन से ऐसे लिख सकते हो बिना ज़्यादा परेशान हुए प्लस माइनस के बारे में। बाकी I डिक्रीज हो रहा है तो भी वो सही हो जाएगा, आप किसी भी केस में उसको सोच के देखो, इट इज़ ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज आप जैसा लिखते हो, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि नेट EMF शुड बी 0, देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो वन EMF इज BWV एंड द अदर इज माइनस LDI/dt, तो दोनों का सम 0 कर दिया। ठीक है, जैसा भी लिखना है लिखिए। नेक्स्ट, ये जो लूप नीचे गिर रहा है इसका मास m है, एक वेट फोर्स है mg डाउनवर्ड, और एक ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ही होगा, इसको सोचने में तनिक भी देर नहीं लगाना चाहिए, तो लेंज लॉ है, अगर ये चीज़ नीचे गिर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर ही होगा। इट विल अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन एंड कॉज ऑफ इंडक्शन इज दैट द लूप इज फॉलिंग डाउनवर्ड। एनीवे, अगर अभी हम फिर से इसी सिचुएशन को इमेजिन करें, 1 मिनट करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, सोच रहे हैं, तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर ये करंट कैरिंग वायर हो गया, IL, B बाहर की तरफ, IL क्रॉस B, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स, अगेन mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स BWI, W इज द लेंथ, ओके, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही A ले रहे हैं तो mg पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है भाई, एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स इसको ऑटोमेटिक करेक्ट करता, हो सकता है इस लूप में करंट का डायरेक्शन कुछ समय के बाद उल्टा, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो सकता है लूप नीचे से ऊपर जाने लगे, जैसा कि हिंट था क्वेश्चन में, कुछ ऑसिलेशन जैसा मोशन होगा, तो उन सभी केसेस के लिए मैथमेटिक्स इस इक्वेशन को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। अगर I का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो I उल्टा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, है ना, तो मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली उसको हर बार करेक्ट कर देता है। तुम एक स्पेशल सिचुएशन में भी अगर इक्वेशन लिख देते हो तो ठीक है, इट्स फाइन। तुम एक जनरल टाइम t पे एक इक्वेशन लिख रहे हो, यू आर एज्यूमिंग दिस पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंड यू हैव रिटन दिस इक्वेशन, इट्स फाइन। लेट एवरीथिंग एल्स बी डन बाय मैथमेटिक्स। हाँ चलिए, कई लोग इसमें बहुत परेशान होते हैं इसलिए बता रहा हूँ। आप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेके एक इक्वेशन लिख दो एक इंस्टेंट के लिए, एंड लेट मैथमेटिक्स डू एवरीथिंग एल्स फॉर यू, ओके। अब बेसिकली आपके पास ये 2 इक्वेशन है और दोनों को सुलझाना है, दोनों को आपको सही करना है। दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आपको कई क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, मिलती है इनफैक्ट, और थोड़ा सा ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो आपको सोल्यूशन का एक तरीका दिखेगा। यहाँ देखिए dV/dt है और यहाँ I है, यहाँ V है, dI/dt है। अगर हम इस इक्वेशन को बिना डरे एक बार और डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ dI/dt आएगा, और यहाँ से dI/dt की वैल्यू V के टर्म्स में यहाँ रिप्लेस की जा सकती है। अगर मैंने ऐसा किया तो फायदा ये होगा कि इस पूरे इक्वेशन में से I एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे V और T में एक रिलेशन मिल जाएगा। भले ही वो गंदा इक्वेशन हो, अच्छा इक्वेशन हो, पर V और T में एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? इसको एक और डिफरेंशिएशन करते हैं जिससे dI/dt आए और dI/dt की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ डाल दीजिए। चलिए एक और डिफरेंशिएशन इसको किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। mg कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये dI/dt हो गया। अब यहाँ से dI/dt की वैल्यू निकालकर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, अगर करेंगे आप ऐसा तो आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा, और ये इक्वेशन बच्चों को परिचित सा लगता है। ये स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला इक्वेशन है, d2x/dt स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जो वेरिएबल है x की जगह v है, और कांस्टेंट जो है ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो ये क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन आप सभी को याद है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन सभी को याद है। दिस इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म वेयर ओमेगा स्टैंड्स फॉर b² w² ml। कंफ्यूज मत होइएगा, ये w है विड्थ,
ये ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ऐसे सभी इक्वेशन का सोल्यूशन ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, ऐसा सभी बच्चों को आई होप कि पता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, शुरुआती उसका काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ पढ़ाया जाता है, ये चीज़ वहीं पढ़ाया जाता है। तो इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये है जिसमें डेल्टा एक अननोन कांस्टेंट है, वी नॉट भी एक अननोन कांस्टेंट है, ओमेगा क्या चीज़ है, तो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस है। ठीक, तो अब हमने v को t के फंक्शन में तो लिख दिया, लेकिन v नॉट और डेल्टा दो अननोन्स हैं, इनके बारे में हमें पता नहीं। इनको पता लगाने के लिए हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस को देखते हैं। शुरुआत में टाइम 0 पे जब छोड़ा गया लूप को तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। तो ये इक्वेशन तो सच्चा तभी होगा ना जब इसमें टाइम 0 लिखने से v की वैल्यू 0 है। तो टाइम 0 पुट करने से v की वैल्यू क्या आई, v नॉट साइन डेल्टा 0 आनी चाहिए। ये तभी संभव है ना जब डेल्टा 0 हो। टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, इसलिए हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि डेल्टा जो है वो 0 ही होगा। इसलिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। अब v नॉट नहीं पता है, अब क्या करें? तो ध्यान देने की बात है कि टाइम 0 पे हमें एक्सेलरेशन भी तो पता है। जैसे ही लूप को छोड़ा था उस समय एक्सेलरेशन पता है। उस समय एक्सेलरेशन क्या था, क्या था g सोच के देखिए, उस समय जैसे ही छोड़ा उस समय एक्सेलरेशन g होना चाहिए क्या? लूप में इंडक्टेंस है, इस बात पे गौर किया जाए। अगर लूप में इंडक्टेंस है तो छोड़ते ही, लूप को छोड़ते ही उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 थी, 0 ही रहेगा। अगर एक इंडक्टर है कहीं भी तो करंट में सडन चेंज नहीं हो सकता। तो 0 था, छोड़ा, 0 ही है करंट। और करंट जब 0 है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 है, सिर्फ mg नाम का एक फोर्स है, इसलिए इनिशियल एक्सेलरेशन g के बराबर था। तो हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये एक्सेलरेशन बन गया। और मुझे पता है कि टाइम 0 पे जो एक्सेलरेशन है वो g है, तो टाइम 0 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू g है। इसलिए जब यहाँ टाइम 0 लिखेंगे तो ये cos 0 1 बन जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू g होनी चाहिए। तो g इज इक्वल टू वी नॉट इन टू ओमेगा, विच मीन्स वी नॉट इज g बाई ओमेगा। ओमेगा फिर से याद करा दो, स्क्वायर रूट ऑफ दिस है। तो वी नॉट की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। वी नॉट की जगह हमने ये लिख दिया, इजंट इट? तो लूप की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। अब इस इक्वेशन को v को dx बाई dt लिख के हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेट कर दिया है मैंने और ये इंटीग्रेशन कर दिया, टाइम चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2, x कोऑर्डिनेट चेंजिंग फ्रॉम 0 to x। तो ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज हाउ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द लोअर एंड विल चेंज विथ टाइम। गॉट माय पॉइंट? अब जो क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल मास फॉर विच द मोशन विल बी पीरियोडिक, बेसिकली मोशन विल बी ऑसिलेटरी। इस पे आप थोड़ा, मैं चाहता हूं मैं ना बताऊं आपको, आप खुद ही दिमाग लगाइए कि यहां से अब आप कैसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मोशन ऑसिलेटरी हो, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए। ये इस इक्वेशन से आपको थोड़ा सा आगे सोचना है, आप सोच पाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये कीजिएगा कि ओमेगा की जगह पे वो जो क्वांटिटी थी, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मास दिखने लगेगा अपने इक्वेशन में। नहीं तो अभी आपको मास दिख ही नहीं रहा और आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है? उसमें मास दिखने लगेगा। अब आप क्या सोचेंगे जिससे ये पता लगा सकें कि मोशन ऑसिलेटरी है कि नहीं है? एक हिंट देके जाता हूं, नहीं तो आप में से बहुत लोग बहुत देर तक परेशान रहेंगे। हिंट यही है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे नहीं है और इसके ऊपर जहां तक सोचो हर जगह है। इसका यूज करके आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ द लूप फॉर विच द मोशन इज ऑसिलेटरी। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, किसी और डिस्कशन के साथ। आई होप कि आप लोग इस चैनल को एंजॉय कर रहे हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।